table, let's move into vector product or cross product. Just write the definition of this. The vector product or cross product of two vectors. The vector product or cross product of two vectors is defined as the vector. Underline the part vector. The vector product or cross product of two vectors is defined as a vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vectors, whose magnitude is equal to the product of the magnitude of the two vectors, and sine of the angle between them, मतलब sin theta, and sine of the angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane, and whose direction is perpendicular to the plane of the two vectors, and is given by the right hand rule. And is given by the right hand rule. So mathematically लिखेंगे इसको हम लोग अगर, so we will write sir perpendicular to the plane of two vectors and is given by the right hand rule, है ना. दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर क्रॉस लेंगे हम लोग तो a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन थीटा इंटू n कैप, है ना. ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना. और ये क्या है, डायरेक्शन. परपेंडिकुलर. So let us try to understand the concept of right hand thumb rule. देखो, वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी अ वेक्टर. सो एज पर द स्टेटमेंट द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स, है ना. जो रिजल्टेंट होगा वो क्या लिखते हैं हम लोग, a क्रॉस b इज इक्वल टू मॉड a इंटू मॉड b इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. एन कैप मतलब क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर, अ वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स, राइट. तो मैंने यहां पर दो पेन ले लिया है. जो मेरा ब्लैक पेन है उसको मैंने वेक्टर ए माना है, और जो मेरा व्हाइट पेन है उसको मैं वेक्टर बी मान रहा हूं. अब करना क्या है आपको, अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है, आप क्या करो, अपना राइट हैंड लो, दिस इज माई राइट हैंड, एंड प्लेस इट ओवर योर वेक्टर ए. Place your right hand over vector A and move from vector A towards vector B. I mean curl your fingers towards vector B through the smaller angle. अब देखिए आप ध्यान से, ये भी एक एंगल बन रहा है और ये भी एक एंगल बन रहा है. I have to take the smaller angle. तो अगर मैं स्मॉलर एंगल से जाऊंगा तो मुझे कुछ जाना पड़ेगा ऐसे, है ना. वेक्टर A, ये ब्लैक वाला पेन जो मेरा वेक्टर A है, और व्हाइट पेन क्या है, वेक्टर B है. सो आई एम मूविंग फ्रॉम A to B. ए से बी की तरफ मैंने फिंगर्स को कर्ल किया. देन डायरेक्शन ऑफ द थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. इन दिस केस द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ठीक है. द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ए क्रॉस बी, द थंब इज पॉइंटिंग अपवर्ड्स. तो अगर मान लो ये प्लेन जो है, ये टेबल का जो प्लेन है जिसमें मैंने वेक्टर ए और वेक्टर बी को प्लेस किया है, इफ दिस प्लेन इज द XY प्लेन, देन द रिजल्टेंट विल बी इन द along the z axis, है ना, perpendicular to both,
परपेंडिकुलर टू एक्स ऑल्सो एंड वाई ऑल्सो, क्या होगा रिजल्टेंट जेड एक्सिस ऊपर की तरफ होगा। अगर मैं सिचुएशन थोड़ा बदल देता हूं, अगर मान लीजिए मुझे बी क्रॉस ए निकालना है व्हाइट पेन से ब्लैक पेन, इन दैट केस इफ आई हैव टू मूव टू द स्मॉलर एंगल आई हैव टू पुट माई हैंड्स लाइक दिस, दिख रहा है? So in this case, the thumb is pointing downwards towards the negative z axis, right? So this is the right hand thumb. A cross B is not equal to B cross A. A cross B is equal to negative of B cross A, because in A cross B the thumb was pointing upwards towards positive z. In B cross A the thumb was pointing downwards towards negative z. Right hand screw rule. देखो, if a right-handed screw is placed with its axis, if a right-handed screw is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors A and B, perpendicular to the plane of vectors A and B, perpendicular to the vectors. If a right-handed screw, If the right-handed screw is placed with its axis perpendicular to the plane of vectors A and B, plane of vectors A and B, Sir, perpendicular to plane of vectors A and B, perpendicular to plane of vectors A and B, plane of vector A and B, and is rotated from A to B, and is rotated from A to B, then the direction in which the screw advances, the direction in which the screw advances, then the direction in which the screw advances then the direction in which the screw advances gives the direction of A cross B, gives the direction of A cross, ठीक है? Now you write right hand thumb rule. Right hand thumb rule. sir, A cross B मतलब vector A cross vector B तो हमारे भाई ठीक है. Curl the finger of the right hand in such a way. Curl the fingers of a right hand in such a way. Curl the fingers of the right hand in such a way that they point in the direction of rotation, so that they point in the direction of rotation from vector A to vector B, through the smaller angle, then the stretched thumb points in the direction of A cross B. ये मुझे पढ़ चुके, जब समझाया मैंने आपको वीडियो में दिखा करके वही चीज, ठीक है?
इसके एग्जांपल्स देखो फटाफट। टॉर्क जो इसका सबसे मेन एग्जांपल है, टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटे लिख देना v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। सब पढ़ेंगे बाद में, बस लिख लो याद रखने के लिए। आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों सेम नहीं है। ध्यान दिया क्या आपने? a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों हाँ सेम सर। नहीं है। नोटिस किया आपने? हाँ सर। जब मैंने हाँ a सर। क्रॉस b किया था तो थंब का डायरेक्शन अलग था, जब b क्रॉस a किया तो थंब का डायरेक्शन डिफरेंट हो गया, है ना? हाँ सर। है ना? तो वी हाँ कैन, सर। सो विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। लिखो प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज फर्स्ट लिखो इसके अंदर, एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब क्या? a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस, है ना? समझ में आ रहा है? हाँ सर। इन केस हाँ सर। ऑफ a क्रॉस b आपका थंब का डायरेक्शन अलग था, लेकिन b क्रॉस a में क्या हो गया? उल्टा हो गया। सो मैग्नीट्यूड विल रिमेन द सेम, लेकिन डायरेक्शन विल बिकम उल्टा। सेकेंड पॉइंट लिखो, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब a क्रॉस b प्लस c will give you a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है ना? हाँ सर। अगला पॉइंट लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स is a null vector. Vector product of two parallel vectors is a null vector. Vector product of two parallel vectors is a null vector. Obviously, अगर मैं कह दूंगा a क्रॉस a, आंसर कितना आएगा? a क्रॉस a का आंसर कितना आएगा बताओ? a क्रॉस a का आंसर कितना आ जाएगा बताओ? a इंटू साइन थीटा, थीटा कितना होगा? 0। आंसर हो जाएगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है ना, जो दोनों बीच के बीच का एंगल कितना है? 0 है ना, तो दे विल बी 0। क्लियर है क्या? हाँ बात सर। समझ में आ रहा है? एक और सर। हाँ सर। हाँ बोलो अब। हाँ हाँ सर, पैरेलल मतलब कि डायरेक्शन भी सेम होना पड़ेगा। हाँ, अगर ठीक है। डायरेक्शन सेम है तो बोलेंगे पैरेलल, अगर डायरेक्शन उल्टा है तो बोलेंगे एंटी पैरेलल। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ये दोनों क्या हो गया? एंटी पैरेलल। दोनों क्या हो गया? पैरेलल। इनका एंगल 0 है, इनका एंगल 180 है। एक और लिखो फटाफट यहाँ पे, the vector product of a vector with itself, the vector product of a vector with itself is a null vector. The vector product of a vector with itself is a null vector. So the vector product of itself. With itself, a cross a,
इज अ जीरो वेक्टर, तो जीरो होगा। नेक्स्ट लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट of two mutually perpendicular vectors, the magnitude of the vector product of two mutually perpendicular vectors is equal to the product of their magnitudes, is equal to the product of their magnitudes। मान लो a और b दो वेक्टर्स अगर हैं मेरे पास, if a and b are perpendicular, ठीक है ना, है ना, तो a क्रॉस b क्या बन जाएगा, a इंटू बी इंटू साइन 90, है ना, क्या बन जाएगा, a इंटू बी इंटू साइन 90। अब साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू बी। क्लियर है क्या? सर हाँ सर, सर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। अब आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के ऊपर, तो लिखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायड्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रायड, है ना, हमने ऑर्थोगोनल ट्रायड्स की बात की थी ना। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रायड्स, हमने ऑर्थोगोनल ट्रायड्स की बात की थी, समझ लेते हैं वो उसका क्या हो जाएगा, मतलब आई कैप जे कैप उस केस में करने से क्या हो जाएगा। आप मुझे देखो बताओ, एक अगर मेरे पास दो वेक्टर होता था, ध्यान देना, अगर मेरे पास दो वेक्टर होता था, उनका जो रिजल्टेंट था वो कहाँ आता था, इनके परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर, हाँ सर। है ना, तो लिखो एकदम बराबर, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या बन जाएगा, ये कैप, सही बोल रहा हूं, आई कैप हाँ सर। क्रॉस जे कैप क्या बन जाएगा, के कैप, हाँ उन दोनों के परपेंडिकुलर। फिर जे कैप क्रॉस के कैप क्या बन जाएगा, आई कैप, ठीक है, और के कैप क्रॉस आई कैप बन जाएगा जी कैप। मतलब इन द प्रीवियस केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट आई वाज मल्टीप्लाइंग आई कैप डॉट आई कैप, आंसर था 1, आई कैप डॉट जे कैप आंसर था 0, क्योंकि वहां पे कॉस का चक्कर था, यहां पर साइन का चक्कर है, पहला बात। दूसरा बात, जो रिजल्टेंट होगा ना, उसका जो डायरेक्शन होगा ना, वो क्या होगा, उन दोनों के परपेंडिकुलर। सो अगर आई और जे का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनके परपेंडिकुलर कौन होगा, के होगा। आई स्टैंड्स फॉर एक्स एक्सिस, जे स्टैंड्स फॉर वाई एक्सिस एंड के स्टैंड्स फॉर जेड एक्सिस। सो अगर आई और जे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई जे प्लेन में अगर है मेरे पास, तो रिजल्टेंट कहां आएगा, के पे आएगा। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सिमिलरली अगर यहां उल्टा हो जाए, आंसर क्या होगा, माइनस के, है ना। समझ में आ रहा है? हाँ सर। है ना, अभी जब बताया मैंने आपको हाँ सर। कि वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होता है, उल्टा होता है, द डायरेक्शन बिकम्स उल्टा, एंड एट द सेम टाइम आई कैप क्रॉस आई कैप विल बी 0, है ना, जे कैप क्रॉस जे कैप विल बी 0 एंड के कैप क्रॉस के कैप will also be 0, because आई कैप इंटू आई कैप विल गिव द एंगल एज 0, पैरेलल वेक्टर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनका एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। एक चीज याद रखना, आपने पहले भी सुना है कि अब ना जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, तो जब भी आपको ये कंफ्यूजन हो जाए ना कि आई कैप जे कैप के कैप होगा कि माइनस के कैप होगा, आप एक मेमोरी को याद रखने के लिए ऐसे करके एक ड्रॉ कर लो, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप जे कैप और के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप,
एंड के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप, राइट। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर मान लो के क्रॉस आई इज जे, अगर आई क्रॉस के लिखूंगा तो माइनस जे होगा। बात समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। एक और लिखो यहाँ पे, the angle between two vectors the angle between two vectors can be found out by the angle between two vectors can be found out by the relation sin theta is equal to a cross b का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड से सर फाउंड आउट बाय, लिखा है बेटा स्क्रीन पे देखो, sin थीटा इज इक्वल टू लिखा है देखो स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है एवरीवन? हाँ ओके सर। है? हाँ सर। है ना? देखो हमने क्या पढ़ा था कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा होता है ना। तो आपका sin थीटा क्या बन जाएगा? बोलो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड इनटू b का। समझ आया एवरीवन? क्लियर हाँ है ना? सर। हाँ सर। और एक और लिखो लास्ट में, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स, unit vector perpendicular to the plane of two vectors can be found out, unit vector perpendicular to the plane of two vectors can be found out as n cap is equal to a cross b divided by a cross b का मैग्नीट्यूड। सर वापस रिपीट कीजिए। परपेंडिकुलर, unit vector perpendicular to the plane of the two vectors can be found out by, देखो स्क्रीन पे लिखा हुआ है n cap is equal to, n cap is the required vector, n cap क्या है? required unit vector। जैसे मान लो हम लोग को अगर मान लो दो वेक्टर दिया हुआ है, अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन में मेरे को एक वेक्टर क्रिएट करना है ना, उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप मुझे बताओ a क्रॉस b का मतलब क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b इंटू एन कैप। एन कैप क्या हो जाएगा? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है ना? क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। चलो एक और यहाँ पे लिखो स्टार बना के, इफ vector a is equal to, if vector a is equal to ax I cap plus by j cap plus ay j cap plus az k cap, and vector b is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap, तो a क्रॉस b क्या बन जाएगा? बताओ a क्रॉस b क्या बन जाएगा? यहाँ पे a हो गया, देखो ध्यान से, ax I कैप इंटू bx I कैप जीरो। क्लियर ना? अरे क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ax सर। अब by से होगा तो क्या होगा? ax by I कैप इंटू j कैप क्या बन जाएगा? k कैप। ठीक है? ठीक है? फिर देखो हाँ। ax इंटू bz I कैप इंटू k कैप क्या बन जाएगा? माइनस j कैप। ये पार्ट समझ में आया क्या एवरीवन? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? बताओ प्लीज। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब देखो ay इंटू बी एक्स, जे कैप इंटू आई कैप क्या होगा? जे कैप इंटू आई कैप क्या बन जाएगा? जे कैप इंटू आई कैप बोलो, के कैप माइनस के। माइनस के कैप माइनस माइनस के के कैप, है ना?
जे कैप इंटू जे कैप तो 0 हो जाएगा। फिर ए वाई बी जेड, जे इंटू के विल बी आई कैप, इजी है ना। फिर आ जाओ ए जेड बी एक्स, के कैप इंटू आई कैप विल बी जे कैप, के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप विल बी व्हाट, माइनस आई कैप। ये पार्ट क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी, ये पार्ट क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब देखो ध्यान से, आई कैप कहाँ है, यहां और यहां, क्या है वो, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई आई कैप। अब जे कैप कहाँ है, यहां और कहाँ गया, यहां, क्या बन जाएगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड जे कैप, है ना। और के कैप कहाँ है, प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये होगा। प्लीज चेक कर लो, प्लीज चेक कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वेक्टर के फॉर्म में आंसर आएगा हमेशा, ठीक है ना। दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, जो आपको पढ़ाया नहीं गया है, क्लास 12 में मैथ्स में पढ़ाते हैं हम लोग, तो जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, मैं फिर भी लिखा दे रहा हूँ आपको, बिना इसके काम चल जाएगा, कि मुझे इसको समझाने का आई थिंक नीड नहीं है अभी आपको, क्लास 12 में अपने आप मैथ्स में आप पढ़ोगे इस चीज को। आप लेकिन फिर भी लिख के रख लो इसको, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो यही बनेगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो बात खत्म है, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। एक बार चेक कर लो, टेक अ मिनट, रिव्यू इट फुल्ली, अगर सब क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप और माइनस 6 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस 3 के कैप आर पैरेलल। इन दोनों वेक्टर्स को पैरेलल प्रूव करना है, ट्राई करो। The question says you have to prove that both vectors are parallel. So what did I teach you just now? If two vectors are parallel, तो उनका A क्रॉस B 0 हो जाएगा। हाँ सर, हो गया। हाँ सर, मेरा भी हो गया। ठीक है क्या? यस। सो 2 इंटू माइनस कितना होगा, माइनस 12, आई कैप इंटू आई कैप तो 0, सॉरी एक सेकेंड रुक जाओ, सर काम ही नहीं था। आई कैप इंटू आई कैप तो मामला खत्म हो गया। 2 इंटू 9 18, आई कैप इंटू जे कैप इज के कैप, 2 इंटू 3 6, आई कैप इंटू के कैप इज व्हाट, माइनस जे कैप। क्लियर हो रहा है? जे कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू आई हाँ कैप सर, हाँ। क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, तो माइनस 18 के कैप। क्लियर है? ठीक है, प्लस 0 और माइनस 9 आई कैप। ठीक है क्या एवरीवन, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ। के कैप इंटू आई कैप, के कैप इंटू आई कैप क्या होता है, जे कैप होता है, तो प्लस 6 जे कैप। के कैप इंटू जे कैप क्या होता है, माइनस आई कैप होता है, तो प्लस 9 आई कैप प्लस 0। कटैक 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 कटैक, आंसर इज 0। सर 0। तो ए क्रॉस बी इज 0, देयरफॉर ए इज पैरेलल। क्लियर ना एवरीवन, ओके ना? हाँ सर। एक और सवाल ट्राई करते हाँ हैं। सर।
ट्राई करो। परपेंडिकुलर टू बोला है ना, ये मैंने कराया है प्रॉपर्टीज में। और देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। बोला है फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। क्या सिखाया था? एन कैप क्या होगा बोलो? सर वेक्टर ए वेक्टर बी का मॉड बाय है ना। सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकालो फटाफट। स्टार्ट। आई कैप 0, 2 इंटू -2 तो -2 के कैप, 2 इंटू 2 4, आई कैप इंटू के कैप जे कैप तो माइनस आई कैप इंटू के कैप क्या होगा? माइनस जे कैप का, हाँ, सो -4 जे कैप। फिर जे कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा? जे कैप इंटू आई कैप क्या हो जाएगा? माइनस के कैप, राइट? सही बोल रहा हूँ क्या? सही बोल रहा हूँ ना? जे कैप इंटू हाँ जे सर। कैप तो 0 हो जाएगा। जे कैप इंटू के कैप क्या हो जाएगा? आई कैप तो +2 आई कैप, ठीक है। के कैप इंटू आई कैप, के कैप इंटू आई कैप प्लस जे कैप, हाँ सर। के कैप इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप मतलब माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा प्लस आई कैप, है ना। -1 इंटू 1 हाफ प्लस, और ये +0, ठीक है क्या? हाँ क्या बन गया? 3 आई कैप, हाँ सर। जे और कहाँ गया? हाँ, -3 जे कैप, 3 के कैप -3 के जे। -3 के कैप, ये क्या हो गया? ये आपका ए क्रॉस बी हो गया। नाउ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर अंडर द रूट, √3, therefore हाँ सर। जो भी आंसर आएगा सॉल्व कर लो। 1/√3 आई कैप -1/√3 जे कैप, ऐसा आएगा ना। चेक करो, देखो समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, इजी है ना मुझे? सर हाँ बोलो, सर आई कैप इंटू के कैप क्या होता है सर? बताओ, तुम बताओ, सर मैंने तो यहाँ पे जे कैप लिखा था। सोच के बताओ। देखो तुम, मैंने पढ़ाया था तो पहले, ऊपर देखो, स्क्रॉल करो, देखो मैंने क्या बताया। Sir, K cap, I think so. I cap into J cap. -j कैप। माइनस जे कैप होना चाहिए ना। आई कैप इंटू के कैप। भाई आई कैप इंटू के कैप आपको सिखाया था ना ऊपर में कैसे निकालते हैं, एक बार ट्राई करके देखो कैसे निकालते हैं। दिखा? जो मैंने एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बताया था तो पहले, हाँ सर। चेक करो उसमें क्या आएगा। क्या आएगा बताओ? माइनस। जितने लोग का हो गया वो एक और क्वेश्चन ट्राई करो। आओ देखते हैं। पूछा है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। आपको पता है ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है बोलो? या मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? हाँ सर।
ठीक है, पहले ये निकालो आप, कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी। अभी 2-3 क्वेश्चन मॉड्यूल में निकलवा दिया है आपसे, आपको आता है कैसे निकालना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बताओ। 3 आई कैप तो 0 हो जाएगा। 3 इंटू -2 इज अबाउट -6 आई कैप इंटू जे कैप प्लस के कैप, तो -6 के कैप। 3 इंटू 4 12 आई कैप इंटू के कैप, आई कैप इंटू के कैप क्या होता है माइनस जे कैप, 12 जे कैप माइनस जे कैप। जे कैप इंटू आई कैप क्या बनेगा, जे कैप इंटू आई कैप क्या बनेगा माइनस के कैप, राइट। हाँ सर। 0 हो जाएगा ये वाला। और 1 इंटू 4 4 जे कैप इंटू के कैप प्लस आई कैप, ठीक है। उसके बाद के कैप इंटू आई कैप क्या होता है 4 जे कैप, है ना, जे कैप होगा ना प्लस जे कैप, -4 के कैप इंटू जे कैप विल बी व्हाट माइनस आई कैप, तो प्लस 4 आई कैप, ठीक है। और 0, हाँ हाँ सर। सिंप्लीफाई करो। सो आई कैप 4 आई कैप यहाँ, 4 आई कैप यहाँ, 8 8 आई कैप -8 जे कैप -8 के कैप। पक्का तो आई एम टेकिंग ओवर वर्ड्स। हाँ ये आ सर, रहा है ये क्या? आ रहा है। हाँ सर, दिस हाँ इज योर यही है। ए क्रॉस, तो इसका मॉड कितना हो जाएगा 64 प्लस 64 है ना, 190 कितना आएगा सॉल्व करने के बाद 512 ये बन जाएगा 8, 512 ये क्या बन जाएगा 64 इंटू 3 तो हो जाएगा 8√3, बी स्मार्ट 8√3। हाँ मॉड ए कितना है, मॉड ए कितना है 9 + 1 + 4 √14, और मॉड बी कितना है 4 + 4 + 16 कितना हो गया √24, राइट। So sin theta is equal to 8√3 divided by √14 into √24. We have 8√3 divided by √2 into √7 into क्या बोला है a minus b क्रॉस क्या करें a plus b, क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, a क्रॉस a बनेगा ये वाला कर सकते हैं बोलो तो, प्लस a क्रॉस b बनेगा कर सकते हैं, माइनस हाँ सर। तो हो जाएगा क्या √8 बाय हाँ √2 into √7, समझ में आ रहा है क्या बोलो। हाँ √8 इज क्लियर हो रहा है, हाँ सर। डिवाइड बाय a क्रॉस a हाँ, कितना सर। होगा 0 √7 कटैक आंसर इज 2/√7। जिसका भी आंसर आया एकदम सही आया, और b क्रॉस b कितना हो जाएगा 0, हाँ सर। सिखाया था, ठीक है क्या, हाँ। ठीक है। हाँ सर। नाउ हाँ सर। एक बात बताओ, वी हैड डिस्कस ना a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस, ट्राई करते हैं क्वेश्चन, हाँ सर। कम्यूटेटिव। हाँ सर। हाँ सर, हाँ वही। हो गया प्रूफ से। शो दैट, ये आपको शो दैट करना है, आंसर क्या हो जाएगा। एक और सवाल कर लो, घर पे ट्राई करना, एक और सवाल कर लो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, घर पे ट्राई करना। हाँ सर। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, मतलब प्रूफ करने वाला ही, ये घर पे ट्राई करना।